So, hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. Today in this lecture, we are going to see toothed gear and gear train. So, what are the topics inside this chapter is we are having based on classification of gears, parallel axis gear, what are the different examples of that, spur gear, helical gear, then after questions being asked, what are the different types of non-parallel and coplanar gears, okay, bevel, conical, okay, so these are the examples, okay, then after non-intersecting gears, what are those, okay, hypoid gear, then after what are the different terms we used in the gear terminology, okay, so what are the different important, okay, clearance, what is pitch circle, pc upon pc is equal to pi d upon t, okay, then after what is the line of action of pressure line, then after the angle of obliquity, what is that, what is the definition of that, okay, then after how the construction baseline, where it exists, where the dedendum circle is that, okay, so all those curves we go through that and see what is the line of intersection where it meets, okay, so one for the pinion case and another for the wheel case, when the mating happens, what curves, okay, intersect at what positions they exist, what are the different materials we used in making a gear, then after laws of gearing, and very important another thing is how the gear teeth are, geometry of the gear teeth are manufactured in the industry. We prefer epicycloid, hypocycloid, then after involute teeth, okay, what is the advantage of cycloidal teeth over the involute teeth, okay, why we prefer, in which cases the interference is less, okay, so what is the reason, the difference between the cycloidal and involute tooth, okay, so it's a little big chapter, okay, so I have divided my lecture into three parts, okay, so one by one I am going to see all those lectures, okay, and then after what is the length of path of contact, okay, very important derivations, okay, this is the derivations we get, this is length of path of contact, okay, generally exists between L to K to L, okay, which is summation of Kp plus Pl, then after what is the length of arc of contact, okay, and contact ratio, how you can calculate length of arc and PC are given, okay, then next uh, topics comes is the interference, how you can avoid the interference, okay, so up to here I'm going to solve some of the previous year questions asked in gate or engineering services examinations, okay, so let's start from gate 1, so 1 marks question क्या बोल रहा है, yes, gear 2. This is our gear 2 rotates at 1200 rpm. Okay. So N2 given is 1200 rpm. Okay. In counterclockwise direction, anti-clockwise. Okay. This is the center. And engages with the gear 3. This 2 is engaged with 3 and gear 4. Okay, gear 4 mounted on the same shaft means 3 and 4 are compound gears existing on the same shaft. यही तो होता है compound gear. Gear 5 engages with gear 4. This 5 is attached or mating with 4. The number of teeth on the gear 2, 3, 4, 2, 3, 4 and 5 are 20, 20, 20 teeth, 40 teeth, 15, 30. Okay, respect the angular speed of the gear 5 is, what is RPM now? So N5 we have to calculate. So how you can calculate this? See, we will be using a very fundamental formula. What is that?
सी N2 अपॉन N1, ठीक है, क्या आएगा T1 अपॉन T2, इज इट करेक्ट? हाउ इट हैज कम? सी PC इज इक्वल टू सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई d अपॉन T, pi d upon T, we know that. Okay, so how can I write? D is directly proportional to T na, pitch diameter, and T is the number of teeth. Okay, so this is one. Now in terms of N is what? RPM. So V is equal to pi d N upon 60, we know that. So what is the relation between D and N? Can I write like this? D directly proportional to inversely proportional to N, D inversely proportional to N. Okay, so this is our again equation number 2. From 1 and 2, D, this D and this D. What is then relation between N and T and N? Sure, inversely proportional. So T is 1 by N. Can I write like from 1 and 2? From 1 and 2. Okay, the same thing, or in inversely proportional to T. So this is the derivations. Okay, the same thing I have written here. ठीक है, in inversely proportional to T, 2 है तो 2 हो गया, 1 हो गया, इसका इनवर्सली T1 इधर हो गया, N1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल T1, N2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल T2. ओके, so this was one side. क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, N2 और N3 का हो गया हमें. ये N1 नहीं है तो 3 है तो 3 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, 3 हो गया. अब देखो 4 और 5, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऑल्सो N4 अपॉन N5 इज इक्वल टू T इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, यहां से T5 अपॉन T4. ठीक, this is our A and this is our B equation. This is our A and this is our B. Okay, from A and B क्या है, या मल्टीप्लाई करो, A इक्वेशन मल्टीप्लाई विथ B इक्वेशन. ठीक है, क्या आ गया? N2 upon N3 multiply N4 upon N5 equal to T3 upon T2 into T5 upon T4. A और B को we have multiplied. See here, N3 और N4 will be cut. क्यों भाई? क्योंकि सेम शाफ्ट पर है, सेम एंगुलर आरपीएम से मूव कर रहा. तो हियर N3 इक्वल टू N4. क्यों? क्योंकि कंपाउंड गियर है, सेम सॉफ्टवेयर है यहाँ पर. ठीक है, जितना रोटेशन पे 3 मूव करेगा उतने रोटेशन पे 4 विल आल्सो. ओके, सो फाइनली N2 अपॉन N5 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इंटू T5 अपॉन T4 आया. अब देखो मेरे पास क्या है, T5 N5 निकालना है. तो N2 कितना दे रखा है? N2 इज गिवन 1200. 1200 आरपीएम में ही रहने देते हैं. नाउ N3 कितना दे रखा है? 3 पर नंबर ऑफ टीथ 40. 2 N2 कितना है? 20. देन आफ्टर T5 कितना है? नंबर ऑफ टीथ 5 पर 30. 4 पर कितना टीथ है? 15. 15. ओके, तो ये आ गया 2. 15 2 जा 30. कितना आया? डायरेक्ट यहीं पर करो. 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12. तो N5 इक्वल टू 300. ओके, इसका आरपीएम था 1200 आरपीएम ना, सेम यूनिट आएगा आरपीएम. ठीक है, तो 300 आरपीएम. यस,
ये दो आंसर है, लेकिन अभी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ठीक है, देखो यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रहा है, ये इससे अटैच है, कैसे मूव करेगा? ये कैसे मूव करेगा? ये इसको ऐसे मूव कराएगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, इसको फ्रिक्शन की वजह से ऐसे मूव करेगा, तो ये भी ऐसे मूव करेगा। दोनों का रोटेशन विल बी सेम ना, 3 और 4 रोटेशन विल बी सेम। ये जब ऐसे मूव करेगा, या यूं कहें थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव, ठीक है। तो नॉट क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 20 डिग्री फुल डेप्थ, क्या दे रखा? 20 डिग्री फुल डेप्थ, इनवॉल्यूट प्रोफाइल, 19 टीथ, पिनियन, ओके, पिनियन का दे रखा है 19 और 37 टीथ गियर इन मेस, ठीक है। एक हम लोगों का ये हो गया सपोज पिनियन, ठीक है, पिनियन, ये हो गया हम लोगों का सपोज बड़ा वाला व्हील, ठीक है। हम्म, चलो मैटिंग करें। नाउ पिनियन हो गया, ये हो गया हम लोगों का गियर, ठीक है, एक पिनियन है, एक पिनियन है और एक गियर है। इसमें तीत कितना दे रखा है? ईपी इज इक्वल टू स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ओके, 19, ये कैपिटल टी हो गया गियर, ठीक है, बड़ा को बड़ा टी, स्मॉल को स्मॉल टी, पिनियन स्मॉल है, स्मॉल टी, गियर बड़ा है, तो capital T, 37 teeth given for the gear. If the module is 5 mm, m given is 5 mm. Okay, the center distance between the gear pair will be, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। m दे रखा है यहाँ पर, m is 5 mm, ठीक है, मॉड्यूल, एंड दिस डिस्टेंस ये पूछ रहा है, दिस डिस्टेंस इज सपोज x, ये पूछ रहा है ना, ओके। तो ये कैसे बनेगा? See, x is equal to, can I write this is our suppose 1, this is our 2, okay, so can I write d1 plus d2 upon 2, what is d? D is the diameter, this diameter of ये, इसका diameter कितना है? d2, ठीक है, गियर 2 का। अब देखो, तो diameter is not given, मॉड्यूल दे रखा है, ठीक है। अब देखो PC इज इक्वल टू क्या होता है? पाई डी अपॉन टी, ठीक है, होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं, वेयर एम इज इक्वल टू डी अपॉन टी, मॉड्यूल इज इक्वल टू डी अपॉन टी, दिस इज आवर मॉड्यूल, मॉड्यूल इज इक्वल टू, यही तो मॉड्यूल है, ओके। तो मॉड्यूल गिवन इज, मॉड्यूल एम इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक, ये आ गया हम लोगों का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पाई डी अपॉन टी इज इक्वल टू पाई इंटू एम, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू एम इंटू सकते हैं क्या? डी इज इक्वल टू एम इंटू टी,
यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या x इज इक्वल टू डी के जगह m, ठीक है, t1 प्लस t2 का क्या हो जाएगा, t1 का हो जाएगा m इंटू t1, t2 का हो जाएगा m इंटू t2, m इंटू t2, ठीक है, अपॉन 2। m1 इक्वल टू m2 होता है इज इक्वल टू m, बिकॉज two gears only made if they have same module, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो गियर आपस में तभी मेट करेगा, ठीक है, तभी मेट करेगा जैसे मेरे पास ये यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, हम लोगों के पास तीत है तरीके से, लाइक दिस। तो तभी गियर, ये गियर 1 है, इसी तरीके से गियर 2 आएगा, ठीक है, जो इसके ऊपर आएगा, तो तभी मेट करेगा जब इसका मॉड्यूल m1 है और इसका मॉड्यूल m2 है, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, तभी तभी हम लोगों का जो दूसरे का गियर है, यानी कि ये वाला जो आएगा ना, कौन सा वाला आएगा, ये है ना, ये ये वाला, ये 2 का है, ठीक है, ये 2 1 के अंदर तभी वो आसानी से फिट होगा या रोल करेगा इफ दे विल बी हैविंग द सेम मॉड्यूल, यानी m1 इक्वल टू m2, ठीक है, इसीलिए m1 m2 हो गया, तो हियर सिंस m1 इक्वल टू m2 k इज इक्वल टू m, ठीक, तो राइट डाउन हियर, सो x इज इक्वल टू m t1 प्लस t2 अपॉन 2, ठीक है, m क्या है 5 mm, इसीलिए x भी mm में आएगा क्योंकि t का हैज नो यूनिट, तो m is 5, what is t1 here, number of teeth, here t1, here t2, ठीक है, तो t1 is 19 plus t2 is 37 upon 2, so finally 5 into कितना आया 16, 9 plus 7 16, कैरी 1 4 5, ओके, ये से गया 2 2 जा 4 8, कितना आ रहा है 5 into 8 8 5 जा 40, कैरी 4 10 40, ये mm में है ना m, तो x is equal to the distance between the two gears is 140 mm. Answer is our this A. Okay, this is how you can find out the distance between the two gears. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सन गियर, बीच में सन गियर है, ठीक है, चारों तरफ सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो बीच वाले को सन गियर बोल रहा है। द सन गियर इन द फिगर इज ड्रिवन क्लॉकवाइज 100 आरपीएम, मीन्स कुछ इस तरीके से, यहाँ ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर सन गियर, के सेंटर, दिस इज आवर व्हाट आर्म ना, ठीक है, आर्म है, इसका क्या दे रखा है, ये इससे कनेक्ट है, तो इसको मीट कराया जाए, मीट हो गया, नौ, अब क्या है, एक और गियर है, इसका नाम क्या दे रहा है, ये
का नाम दे रहा है रिंग। ठीक है, इस तरीके का सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ मीट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये सन है, 20t मीन्स 20th क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि है ना क्लॉकवाइज। 100 आरपीएम दे रखा है। इन सपोज इस सन का 200 आरपीएम दे रखा है। द रिंग गियर इज हेल्ड स्टेशनरी, इसको स्टेशनरी करते हैं रिंग का। ये हो गया रिंग। 80 टी दे रखा है, यानी नंबर ऑफ टीथ रिंग का 80 दे रखा है। द नंबर इसके ऊपर में 80 नंबर ऑफ टीथ्स हैं। और द नंबर ऑफ टीथ सोन इन द गियर्स, ये प्लैनेट है PLANET 30 टी, नंबर ऑफ टीथ सम प्लैनेट इज 30। ठीक, ओके। द आर्म रोटेट्स एट, आर्म का, ये आर्म का हमें क्या करना है, आरपीएम निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू मेक ए टेबल। ठीक है, टेबल, विदाउट टेबल डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक, तो टेबल बनाते हैं फिर। तो टेबल कैसे बनेंगे, यहाँ पर ऐसे करते हैं। यहाँ लिखो सीरियल नंबर, कंडीशन ऑफ मोशंस, कंडीशन ऑफ मोशंस। ठीक है, देखिए यहाँ कॉलम क्रिएट करो। यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पहला सीरियल नंबर में क्या आएगा, 1। कंडीशन ऑफ मोशंस, यहाँ पर क्या करते हैं, आर्म फिक्स्ड। ठीक है, इस आर्म को क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं। ठीक, आर्म फिक्स्ड, और क्या कर रहे हैं, गियर या सन गियर रोटेट्स +1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। +1 लिया मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे लिखते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमें काउंटर क्लॉकवाइज नहीं लिखते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलते, यानी कि ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसको पॉजिटिव होगा 1। यदि ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव होगा। ओके, यदि यहाँ पर 200 है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, लाइक दिस, बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आर्म के बाद क्या आ रहा है, सन। ठीक है, गियर सन। ठीक है, सन किसको रोटेट कर रहा है, प्लैनेट को, तो लिखेंगे गियर प्लैनेट। ठीक है,
उसके बाद प्लैनेट किसको रोटेट कर रहा है, रिंग को करेंगे। हियर रिंग से क्या है, कनेक्ट है। तो गियर वन, ओके, सन गियर को कैसे रोटेट किए, पॉजिटिव, पॉजिटिव वन कर दो, ठीक है। इसको इससे इसको डिनोट करेंगे, इसको पी से करेंगे डिनोट, इसको आर से करेंगे, ठीक है। देखो रिवॉल्यूशन पी का क्या होगा, यहाँ रफ करते हैं, एन पी अपॉन एन एस। एन पी क्या है, इसका रोटेशन, ठीक है, और इसका एन एस हो गया, और इसका एन आर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, एन और टी का क्या रिलेशन था, लास्ट क्वेश्चन में एन और टी का क्या रिलेशन था, एन और टी का क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम थिंग आई विल बी यूजिंग हियर, इनवर्सली, तो टी एस अपॉन टी पी, ओके। तो यहाँ पर एन एस क्या है, दिस इज एन एस ना, पॉजिटिव वन, एन एस हो गया ना, सन का रिवॉल्यूशन। तो एन पी इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी पी इंटू पॉजिटिव वन, है ना, इंटू पॉजिटिव वन, है ना, क्या आया, टी एस अपॉन टी पी आ गया, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, टी एनपी का रिवॉल्यूशन टी एस अपॉन टी पी आ गया। अब ये देखो, ये क्लॉकवाइज में है, तो एनपी कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यदि ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ये ऐसे मूव कर, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोगों का, हम्म, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लगाना पड़ेगा एंटी, बिकॉज हियर लेट क्लॉकवाइज को हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेके चले, ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज को, रोटेशन को नेगेटिव लेके चले। ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव है ना, रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज लिए थे ना पॉजिटिव, अब इस क्लॉकवाइज से ही एंटी क्लॉकवाइज में हम कन्वर्ट हुआ तो माइनस कर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसके बाद आएगा, सिमिलरली हमें इन आर निकालना है, इन आर, इन आर जो है, ये जो आर है, ये जो आर है किससे कनेक्ट है, इससे, पी के हेल्प से मूव कर रहा है ना आर, तो ये दोनों को एन पी करेंगे, पी के टर्म में क्या होगा, इनवर्स में टी आर, कैन आई राइट लाइक दिस, यहाँ क्या आएगा, एन आर इज इक्वल टू टी पी अपॉन टी आर इंटू एन पी, ओके। तो टी पी अपॉन टी आर, एन पी क्या है, यह निकाला ना, ये एन पी तो है, ये एन एस था, दिस वाज एन एस, दिस वाज एन एस, दिस इज एन पी, दिस इज एन आर, ओके। तो एन पी क्या आ गया यहाँ से, टी एस अपॉन टी पी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर डोंट पुट पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पर है, मैं यहाँ से डिसाइड कर लूँ आसानी से, ठीक है। तो इन आर फाइनली आई हैव टेकन पॉजिटिव हियर, वो मैं डिसाइड करूंगा क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव। चलो आ ही गया, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, क्या आ गया, इसको गैप करो, स्टैंडिंग के लिए था, चलो, हाँ। तो क्या आ गया, एन पी, एन आर क्या आ गया, एन आर क्या आ गया हमें, एन आर इज इक्वल टू टी पी अपॉन टी आर इंटू टी एस अपॉन टी पी, सेम थिंग यू राइट हियर, टी पी अपॉन टी आर
इंटू टी एस अपॉन टी टी। अब ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ई फिर आर को रोटेट कैसे करा रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, कौन, पी, तो ये भी तो इधर की ओर धक्का देगा ना आर को, है ना। यदि ये मेरे पास पी है, तीत है, ये तीत है, और ये हो गया आर, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी तो धक्का देगा ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। यू कहें ऐसे हो रहा है, ठीक है, सर्कल लाइक दिस, ठीक है, इफ दिस वन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज आवर पी, इसके ऊपर हम लोगों का कुछ एक एलिमेंट है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज आवर पी एंड दिस इज आवर सपोज आर, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ से टच है ऐसे, तो ये भी तो ऐसे मूव करेगा ना, ये ऐसे, ठीक है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी तो ऐसे मूव करेगा ना, ये टच में है, स्लिपिंग नो स्लिपिंग, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। So again this will be in our negative, negative, okay। So second step mainly यहीं तक था, हमें x में 2 में क्या करेंगे, आर्म को फिक्स्ड करेंगे, ठीक है, और सन गियर रोटेट्स पॉजिटिव y रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एक चीज और छूटा है, जो कि कौन सा है, हालांकि वो पहले होना चाहिए था, ठीक है, आर, ठीक है, आर, यहाँ पर ना करके यहाँ, ये हो गया आर, क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, तो वाई, ये तो जीरो था, क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव एक्स से करो, है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो x इंटू पॉजिटिव वन तो प्लस एक्स, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे, ठीक है, टीपी से टीपी कैंसिल हो गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एस अपॉन टी आर, है ना। ये 3 में क्या करेंगे हम लोग, ऐड पॉजिटिव वाई रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, यहाँ पर देखो ये जीरो क्यों हुआ, कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, x को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू जीरो जीरो आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वी आर एडिंग प्लस पॉजिटिव वाई रिवॉल्यूशन इन ऑल द एलिमेंट्स, तो पॉजिटिव वाई पॉजिटिव वाई पॉजिटिव वाई, और में क्या आ गया, टोटल रिवॉल्यूशन या टोटल मोशन, टोटल मोशन क्या आ गया, x प्लस वाई, ठीक है, हालांकि ये वाला आर्म जो है ना, पहले ही हम लोग कॉलम बनाते हैं, मैं इधर थोड़ा सा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, y माइनस एक्स टी एस अपॉन टी टी, ये क्या आ गया, y माइनस एक्स टी एस अपॉन टी आर, y प्लस जीरो, तो y का y आ गया, पॉजिटिव y, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, द सन गियर इन द फिगर
ठीक है। द सन गियर इन फिगर इज ड्रिवन क्लॉकवाइज 100 आरपीएम। देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, 100 आरपीएम दे रखा है सन गियर का। ठीक, सन गियर का 100 आरपीएम। कौन सा सन गियर है, ये वाला है, यानी एनएस का वैल्यू दे रखा है 200। एनएस कौन सा है यहाँ पर, वेर इज एनएस, एनएस मतलब दिस वन, दिस इज एनएस ना, दिस इज आवर एनएस एंड दिस इज आवर एनपी, दिस इज आवर एन आर, और ये आर्म का आर्म हो गया। ठीक है, कौन सा, ये आर्म का आर्म हो गया। ठीक है, दिस इज आवर आर। हमें एनएस दे रखा है 200 आरपीएम। ठीक है, क्या दे रखा है, एन एस इज इक्वल टू 200, पॉजिटिव नेगेटिव मैं कर देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो, पॉजिटिव 200 आरपीएम। ठीक है, 200 आरपीएम क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी 100 आरपीएम नॉट 200। ठीक है, 100 आरपीएम यहाँ पे चेंज हो, यहाँ पर पॉजिटिव 100 आरपीएम। ठीक है, द रिंग गियर इज हेल्ड स्टेशनरी, यानी कि ये वाला जो है एन आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, स्टेशनरी बोल रहा है ना क्वेश्चन, तभी तो एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा हमें। ठीक है, रिंग को 0 किया है यहाँ पर, तो रिंग कौन सा है, रिंग कौन सा है, दिस वन इज रिंग, एन आर इक्वल टू 0, एन आर इक्वल टू 0, और एन आर है क्या, दिस इज y माइनस एक्स टी एस अपॉन टी आर इज 0, यहाँ से x और y निकालना है मेरे को। ठीक है, अब देखो और भी कुछ दे रखा है क्या, द नंबर ऑफ टीथ सोन ऑन द गियर्स द आर्म रोटेट्स एट, आर्म मतलब आर्म का वेलोसिटी निकालना है, आर्म का वेलोसिटी कौन सा है, यानी कि y का वैल्यू निकाल के देना है क्वेश्चन को। ठीक है, y का वैल्यू क्या दे रखा है, एन आर, एन आर इज इक्वल टू, ठीक है ये तो हो गया, एन एस, एन एस है क्या, एन एस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 200 लिख सकते हैं क्या, एन एक्स ही तो है एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक इक्वेशन ये आया, दूसरा इक्वेशन ये आ रहा है। ठीक है, हमें टी एस और टी आर रखना पड़ेगा ताकि एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन आए। ठीक है, एक्स और वाई क्या लिखना है, टी एस और टी आर, टी एस और टी आर, टी एस दे रखा है 20 और टी आर दे रखा है 80। ठीक है, करते हैं y माइनस एक्स, टी एस कितना दे रखा है 20, ठीक है, टी आर कितना दे रखा है 80, देखो इस 20 आर 80। ओके, सो इक्वल टू 0, और जा तो ये ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 0, और 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, या यू कहें इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, अब कर देते हैं ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, क्या आ गया ऐड करने पर, x से x उड़ गया, तो y प्लस 4y इक्वल टू 200, और 5y इक्वल टू 200। ठीक है, तो y फाइनली इज कितना आ गया, 5 4 या 20। ठीक है, y इक्वल टू कितना आया, तो वी आर एडिंग बोथ, तो 4 बाई 5
तो y value is coming 5 4 जा 20. ओके 20. क्वेश्चन सॉरी यहाँ 100 होगा ना. ओके यहाँ ऑलरेडी 100 आई टोल्ड यू ना. So this is in question it was 100. Okay, this was 100 not 200. Okay, in the question also it is 100 not 200. ठीक है. So finally correcting our calculation, ये आ गया हमें 1, ये आ गया 1, ये आ गया. तो 100 डिवाइडेड बाई 5 तो 20. तो 100 क्या था आरपीएम में था. फाइनली y इज इक्वल टू 20 आरपीएम. ओके. तो B इज आवर आंसर. तो आंसर क्या आ गया हम लोगों का, दिस B. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इंटर करते हैं. पेयर ऑफ स्पर गियर्स. ठीक है, दो गियर है, दोनों क्या है स्पर गियर्स, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी रेशियो 1:2. वेलोसिटी रेशियो दे रखा है 1:2. ठीक है. मॉड्यूल ऑफ द गियर्स इज 10 mm. ठीक है. क्या दे रखा है, गियर का मॉड्यूल गिवन इज 10 mm एंड अडेंडम इज 10 mm. अडेंडम किसका चल रहा है, गियर का. इफ द ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल इज फाई, यानी ऑब्लिक्विटी एंगल इज गिवन, एंगल प्रेशर एंगल इज गिवन इज 15 डिग्री. द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन. ठीक है, स्मॉल टी का वैल्यू निकालना है. कैपिटल क्या है टी, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर. ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. ठीक है. टू इंश्योर नो इंटरफेरेंस कट इज, ये हमें पूछना है, पूछ रहा है. ठीक है. तो इसका कैसे बनेगा, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये एक चीज देखना है मेरे को, दिस पर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. गियर का दे रखा है मॉड्यूल इतना और एडेंडम. तो वी नो व्हाट वी नो T is equal to number of teeth on pinion is equal to twice of AP upon root 1 plus G bracket G plus 2 sin square phi. ठीक है, माइनस बार में होता है माइनस. ठीक है. एक तो ये दे रखा है. क्या हमें टी निकालना है, तो यहां से निकल सकता है टी. ठीक है. एपी मालूम है, नहीं मालूम है. जी, यस, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है 1/2. ठीक है. तो गियर रेशियो क्या हो गया, जी इज इक्वल टू 2 हो गया. ठीक है. तो देखो हियर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताना है
कि वेलोसिटी रेशियो जी क्या होता है। जी इज इक्वल टू क्या होता है, गियर रेशियो। गियर रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी होता है। यहाँ वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, यानी कि देखो, ये हो गया हम लोगों का क्या, पीनियन। ठीक है, पीनियन। और दूसरा एक होता है हम लोगों का क्या, दूसरा हम लोगों का हो गया गियर, यानी कि व्हील, है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं गियर। जनरली गियर हमेशा बिग होता है, हमेशा ध्यान रखना। पिनियन स्मॉल होता है, क्यों कमजोर बनाया जाता है, और गियर को हमेशा बिग बनाया जाता है मजबूत के लिए। गियर हमेशा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और पिनियन हमेशा वीक होता है। इसीलिए मशीन डिजाइन में हमेशा पिनियन को डिजाइन करते हैं, गियर को डिजाइन करते हैं। पिनियन को क्यों डिजाइन करते हैं, बिकॉज इट इज वीक, स्मॉल। कोई भी मटेरियल कम है किसी कंपोनेंट में तो वीक होगा ही, तो इसीलिए पिनियन स्मॉल है, मटेरियल कम है तो ये वीक होता है। इसीलिए नंबर ऑफ टीथ जो पाया जाता है इसमें स्मॉल टी होगा, इसमें बड़ा टीथ में, बड़ा गियर में बड़ा होगा, इसीलिए कैपिटल टी अपॉन स्मॉल। क्योंकि बड़ा में बड़ा नंबर ऑफ टीथ है, तो इसीलिए जो वेलोसिटी रेशियो है 1 नीचे आ जाएगा, और ये जो ऊपर 2 बड़ा वाला जो है, ऊपर और नीचे में से सबसे बड़ा कौन है, 2, तो 2 ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो बड़े वालों को बड़ा वैल्यू मिल गया, छोटे वालों को छोटा वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसीलिए g विल बी इक्वल टू 2, फाइनली g इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो g इज इक्वल टू 2। और क्या क्या मालूम है, फाई एंगल दे रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। ठीक, इस गियर का दे रखा है, तो देखो also कैपिटल टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डब्ल्यू, है ना। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये भी होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये व्हील के ऊपर होता है, ये पिनियन के ऊपर होता है। इसका फॉर्मूला क्या हम लोग रटे हैं, 1+1/g ब्रैकेट 1/g+2 साइन स्क्वायर फाई के -1। ठीक है, ये हम लोग रिमेम्बर किए हैं। यहाँ पर देखो एम दे रखा है, अडेंडम दे रखा है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया। इन फोर गियर के लिए, नॉट पिनियन के लिए, ये फॉर्मूला आई विल बी यूज, ये नहीं यहाँ पे क्यों, क्योंकि ए डब्ल्यू आएगा इस वाले से, इस वाले से हमें ए डब्ल्यू का वैल्यू आएगा, एपी का वैल्यू नहीं आएगा। पिनियन का नहीं दे रखा है, इस गियर का दे रखा है, यानी व्हील का दे रखा है। व्हील इज, व्हील को ही हम लोग गियर बोलते हैं। ठीक है, बोथ सेम। तो ये गियर का दे रखा है, यानी व्हील का दे रखा है। ओके, तो हमें ए डब्ल्यू निकालना है। तो फोर गियर या व्हील के लिए एडेंडम, ठीक है, एडेंडम व्हील के लिए इज इक्वल टू ए डब्ल्यू एम इंटू एम, ए डब्ल्यू आएगा, होता है। एडेंडम होता क्या है, एडेंडम क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये हो गया, टीथ हो गया,
ठीक है, ये 3D में हो गया, है ना। तो इस सर्कल से ये जो हो गया हम लोगों का, ठीक है, दिस इज आवर व्हाट, डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल और रूट सर्कल, ठीक है। और उसके बाद जो सर्कल पास करेगा, दिस सर्कल, विच सर्कल, दिस सर्कल, ये वाला, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल, यानी टॉप ऑफ द टीथ से पास करेगा, दैट इज। के बाद नेक्स्ट जो आता है हम लोगों का, ये एक आता है बीचों बीच, लगभग बीचों बीच नहीं होता है, दिस इज अवर व्हाट, पिच सर्कल। इसको हम लोग इमेजिनरी सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एडेंडम क्या होगा, एडेंडम इज दिस, ठीक है। दिस इज द रेडियल डिस्टेंस between the addendum circle and pitch circle, ठीक है, इज नोन एज addendum। ये हाइट दे रखा है यहाँ पर 10 mm क्वेश्चन में, किसके लिए, व्हील के लिए, ठीक है, व्हील के लिए। तो व्हील के लिए क्या दे रखा है, 10 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, बैठा दिया वैल्यू, है ना। 10 mm इज इक्वल टू m दे रखा है, मॉड्यूल दे रखा है क्या, 10 mm, तो एंटर करते हैं वैल्यू, 10 mm इंटू ए डब्ल्यू, यहाँ से ए डब्ल्यू आएगा फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए कोई यूनिट नहीं, एम एम से एम कैंसिल, तो ए डब्ल्यू का यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो ए डब्ल्यू फाइनली वी आर गेटिंग इज 1, ओके। so this is our equation 1 and this is our equation 2, okay। from 2 equation t क्या आ गया, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर या व्हील, है ना। तो ट्वाइस ए डब्ल्यू अपॉन रूट 1 + 1/g ब्रैकेट 1/g +2 साइन स्क्वायर फाइव -1, ठीक है। तो कैपिटल टी बराबर क्या आएगा, 2 इंटू ए डब्ल्यू इज 1, जस्ट कैलकुलेटेड। नाउ पुट रिमेनिंग वैल्यूज हियर, 1 + 1/g, how much we have to put, 2 na, 2 na, this 2, so 2, so 1/2 + 2 sine square, how much, 5, pressure angle given 15 degree, then outside -1, okay। so for calculation we will have to use calculator here, हाँ तो चलो तो करते हैं, नीचे 1 + 1 मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2.5 इंटू साइन हाउ मच, 15 डिग्री, ठीक है, फिर से इंटू साइन
15 डिग्री। ओके, तो इक्वल टू आ गया ये, इंजीनियरिंग में कर दो, रूट करो, आंसर करो दिस, फिर -1 ये। अब नीचे में है, इसको इन्वर्स करके इंटू 2 कर, ऊपर में 2 इंटू 1 है ना, इंटू 2, तो यू आर गेटिंग 48.75. So T value is getting 48.75. This is the number of teeth on the wheel, not on the pinion. लेकिन क्वेश्चन में हमें पिनियन में पूछा है, पिनियन पर कितना टीथ है, तो इसके लिए और थोड़ा आगे बढ़ना होगा मेरे को। क्या है निकालना, बट। ठीक है, अगेन फ्रॉम टू, टू से ही हम लोग स्मॉल टी वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल टी तो निकालना है मेरे को, यही तो निकालना है स्मॉल टी का वैल्यू, है ना। तो स्मॉल टू इक्वेशन से, फ्रॉम टू इक्वेशन क्या करें, t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डब्ल्यू अपॉन रूट 1 प्लस 1 बाई जी, ब्रैकेट 1 बाई जी प्लस 2, ठीक है, साइन स्क्वायर पाई -1। ठीक है, ऐसे था ना। क्या हम लोग दोनों साइड स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। ठीक, पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो यहां से यहां तो कैंसिल हो गया है, तो स्मॉल टी आ गया जो हमें निकालना है ना। अब मेरे को बात बताओ, ये है क्या, ये वाला क्या था, यानी कि ये वाला क्या था हमें, ये वाला, ये वाला क्या था, कैपिटल टी ही था ना, कैपिटल टी ही था ना ये वाला। टी बराबर ट्वाइस ऑफ ए डब्ल्यू अपॉन ये वाला वैल्यू, तो हम इसको टी इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हैं, इसे काटना नहीं है। ठीक है, कैपिटल टी टी, अब देखो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी को क्या लिख देंगे, 1 बाई जी लिख देंगे क्या, क्यों, एज बिकॉज जी वाज कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो टी बराबर फाइनली फ्रॉम हियर capital T is how much, 48.75. what is G here, 2, is 2 value। ठीक है, तो कितना आ रहा है 48.75 डिवाइडेड बाई कितना आया, इसे करेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई 2, तो 24.37, 24.37। so this is a small value we are getting, small t value we are getting। ठीक है, तो रफली मैं ये कह सकता हूँ स्मॉल टी इज इक्वल टू 25, यदि मैं अप्रॉक्स वैल्यू लूँ तो स्मॉल टी का वैल्यू 25 आना चाहिए होल नंबर टर्म में। ठीक, तो आंसर विल बी 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व number of teeth on the wheel and the pinion, okay, in avoiding the interference। ठीक है, now the next question we are going to solve is इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्वेश्चन 2022 में पूछा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गियर्स, साइक्लोइडल, हाइपोसाइक्लोइडल, इपीसाइक्लोइडल। पहले तो ये समझते हैं साइक्लोइडल होते हैं। देखो, तीन होता है साइक्लोइडल, दीज आर द डिफरेंट वेज by which you can generate the profile of the teeth of the gear। Okay, generally
hypocycloid, epicycloid, okay, and then another is involute, okay. These are the different profiles by which you can generate the design of the teeth, ठीक है। साइक्लॉइड क्या होता है, सक्लॉइडल क्या होता है। सक्लॉइड क्या होता है, when when a circle is rotating on a straight, okay, on a straight path, the path generated, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, जनरेट हो रहा है क्लॉकवाइज में, क्या कर रहे हैं, इस पाथ के अलोंग में ये मूव कर रहा है। जैसे ये मूव करेगा तो थोड़ी देर में ये यहाँ पहुंचे, ठीक है, थोड़ी देर में ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर में ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, ये जो पाथ जनरेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में एक प्रोफाइल जनरेट कर रहा है, दिस इज नोन एज साइक्लॉइडल, ठीक है। इपीसाइक्लॉइडल हाइपोसाइक्लॉइडल क्या होता है, एक मेरे पास कर्व है, ठीक, और मैं ठीक इस तरीके से एक सर्कल ये है, ठीक, दूसरा सर्कल ये हो गया, सेम सर्कल होगा, मतलब डायमीटर का, ठीक। उसके बाद ये वाला ले लेते हैं, ये एक हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो जब सर्कल रोल करता है वेनस, ये तरीके से ए पॉइंट है या पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी डैश हो गया, है ना, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो ये प्रोफाइल जो ऐसे जो बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, जब ये सर्कल को पी पॉइंट जो जैसे जैसे मूव करेगा ये इस पाथ की ओर ये पाथ जनरेट करेगा, ओके। ये जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये जो पी पॉइंट है धीरे 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 ये कर्व जनरेट करते हुए निकलेगा, इसे बोलते हैं पिच सर्कल। ये स्ट्रेट लाइन से सर्कल फॉर्म हो रहा था, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा था दैट इज पिच लाइन, पिच लाइन, ठीक है। तो दिस इज साइक्लॉइडल, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन ध्यान से सुनो, ईपी ऊपर वाले को बोलते हैं ईपी, ईपी साइक्लॉइड, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपो साइक्लॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का गियर जनरेट होता है। सो सो इस तरीके से हमें जनरेट होती है, ऐसे हो, है ना, और ये ऐसे जनरेट ऐसे चलेगा। तो जैसे जैसे हम लोगों का डायरेक्शन दे रखा है व्हील का या सर्कल का, तो ये तो कर्व जनरेट होगा, दैट इज द ओके ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द टीथ। तो इपी साइक्लॉइड क्या होता है, इपी साइक्लॉइड क्या होता है, इपी साइक्लॉइड when a circle rolls without slipping outside the circle, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल मतलब इस सर्कल के आउटसाइड में, द पाथ जनरेटेड बाय द मीन्स दिस पाथ,
the path, this path, the path generated by the point on the circumference of the circle is known as epicycloid. ओके, अब आते हैं हाइपरसाइक्लोइड का। हाइपरसाइक्लोइड क्या होता है? ये वाला, द बिलो वाला। ठीक, इसका क्या डिफिनेशन है? इसका डिफिनेशन क्या है हाइपो साइक्लोइड का? व्हेन ए सर्कल रोल्स, ये सर्कल, दिस सर्कल, व्हेन ए सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग आउटसाइड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल मतलब इस सर्कल के, ऑरेंज सर्कल के साइड में, व्हेन ए सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग इनसाइड ए फिक्स्ड सर्कल, inside a fixed circle, the path generated by, ये पिंक वाला, the path generated by the point on the circumference is known as hypocycloid. Okay, so this pink is hypo, this is hypo, and this is our EP. Okay, epicycloid क्या हुआ है? When a circle rolls without slipping outside the fixed circle, the path generated by the point on the circumference is known as epicycloid. Whereas hypercycloid is what? The path when a circle rolls without slipping inside the fixed circle, the path generated by the point on the circumference is known as hypocycloid. ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। Cycloidal क्या होता है? The circle is locus of the point on the circumference of the circle that rolls without slipping on a fixed straight line. ठीक है, साइक्लोइडल हमेशा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पे वो रोल कर रहा होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है। दिस हाइपोसाइक्लोइड क्या बोला था? इनसाइड द फिक्स्ड सर्कल। क्या है, क्या ये locus of the point is circumference of circle that rolls without slipping on the circumference of another circle। another कौन सा है? यहाँ कुछ खास बोला नहीं है ये, ठीक है, तो इसीलिए वो डिफाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफाइन नहीं किया है। अनदर सर्कल कौन सा है? अनदर सर्कल कुछ भी, इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है, हाइपोसाइक्लोइड हमेशा इनसाइड के लिए होता है। ठीक है, हाइपो इपीसाइक्लोइड आउटसाइड के लिए होता है। ठीक है, आउटसाइड ये ऑरेंज कलर लाइन, इनसाइड ऑरेंज कलर। तो टू तो कुछ नहीं डिफाइन किया है। तो थर्ड क्या बोलता है ना, इपीसाइक्लोइड, यानी कि इसका बारे में बात कर। अब locus a point on the circumference of a circle that rolls without slipping inside a circumference of another circle। तो थ्री तो एकदम गलत हो गया। ठीक है, इपीसाइक्लोइड तो आउटसाइड बोला था, ये इनसाइड बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो थ्री इज रॉन्ग। ठीक है, वन इज करेक्ट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन गया। वन, थ्री तो गलत हो गया, थ्री गलत हो गया, तो टू या वन? तो टू तो अनदर सर्कल, अनदर सर्कल कुछ डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो वन और टू में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर वन तो एकदम करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में ही होता है, तो वन इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द cycloidal। okay, number of teeth you have, while you have to find out the number of teeth on the pinion, number of teeth on the wheel. Okay, some more problems I am going to solve based on the length of path of contact ratio. Okay, so join in another lecture. Okay, for those problems. Thank you all.